स्क्रीन देखिए, सो हो रही है मैम आपको? लेट्स वी स्टार्ट. So good morning everyone. Today we are doing the new act in a series of law of contract, that is Negotiable Instrument Act. One of the especially major act in respect of your exam and in respect of litigation also. If I talk about the litigation in a current scenario, you will find so many cases regarding the negotiable instrument case, instrument act case related to the check bounce, स्पेशली ओनली विद द सेक्शन 138 आपकी एक अच्छी खासी एडवोकेसी आप देखने को मिल सकती है और आप पूरी लाइफ अच्छी एडवोकेसी में बता सकते हैं ओनली बाय वर्च्यू ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट केस. In a current scenario, it's a boom with the cases of negotiable instrument acts case. So here we learn about the what is negotiable instrument act, what is the offense regarding the negotiable instrument. Simply, we start with the two words negotiable and instrument. Negotiable word means the transfer. The thing can be transferred from one person to the another person. And if I say instrument, what is instrument? दो चीजें होती हैं, एक होता है डॉक्यूमेंट और एक होता है इंस्ट्रूमेंट. By virtue of Indian Evidence Act and the BNS is simply says that the document is any kind of script, any kind of symbol, whatever we write on somewhere else. किसी भी चीज़ की हमने मैनिफेस्टेशन कर दी, that is the document. कोई साइन बना दिया, कोई सिंबल बना दिया, कुछ भी हमने कर दिया किसी भी चीज़ पे, on a wall, on a stone, on a paper, anywhere, that is the document. Pictures also a document. Clear? When that document, एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास, जब वो डॉक्यूमेंट राइट्स एंड लायबिलिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड करता है, व्हेन द डॉक्यूमेंट डिसाइडेड द राइट्स एंड ड्यूटीज, इट कॉल द इंस्ट्रूमेंट. उससे हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. तो इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो अ डॉक्यूमेंट, बट इट इज द एक्स्ट्रा वर्जन ऑफ अ डॉक्यूमेंट. एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे किसी की राइट एंड ड्यूटीज पता चलती है, उससे हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. एक तो डॉक्यूमेंट नॉर्मली हो सकता है, भाई रूल्स बताता है, नॉर्मल कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, जस्ट अबाउट दैट. एक डॉक्यूमेंट इस तरीके से ड्राफ्ट हुआ है, लीगली ड्राफ्ट हुआ है, जिससे किसी की राइट और किसी की ड्यूटीज पता चल रही है, दैट इज इंस्ट्रूमेंट. क्लियर? अब मैं जब दोनों वर्ड्स को जोड़ता हूं, ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, इट मीन्स दैट इंस्ट्रूमेंट which decide the right and duty, if it can be transferred from one person to the another person, that is called the negotiable instrument. क्लियर? वह इंस्ट्रूमेंट जिसको आगे नेगोशिएट करा जा सके, दैट इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. स्पेसिफिकली वी डील हियर विद द चेक. व्हाट इज चेक? इन अ चेक देयर इज अ थ्री पर्सन्स आर अवेलेबल: ड्रॉअर, ड्रॉई and pay. Drawer is the person who draw the check, who create the check. Creator है ये. I have a account, I have a my checkbook, I just sign a check. तो who are drawer? I am the drawer. Clear? Drawer is the person who has ordered to pay. जिसको ऑर्डर दिया गया है कि तू पैसे दे दियो, वो ड्रॉई है. That is bank. I ordered the bank kindly pay the certain amount of money. To whom? Pay. And pay are who? Whose name is right on the check. जिसका नाम चेक पे लिखा हुआ है as a pay, as the person who are right, who have the right to collect money, that is called the pay. Clear here? Drawer is the person who draw the check, drawer is the person to whom it draw it, and pay is the person who have to be paid. Clear? चल, यहाँ पे ये हमारी चीज के लिए. नाउ व्हाट वी हैव टू डू रिगार्डिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की अब यहाँ पे ऑफेंस कैसे बनता है, थोड़ी सी एक बात हम समझेंगे. एक गिव मी अ मिनट, सम ऑफ द मैसेज, वेट अ मिनट जस्ट.
ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, तो चेक के हमने अभी जाने हु इज द ड्रॉअर, हु इज द ड्रॉय एंड पे, क्लियर। नाउ वन थिंग इज मोर आई वांट टू ऐड इट हियर, द मैटर ऑफ अ चेक बाउंस, इट्स अ सिविल मैटर, simply monetary matter है, there are no any harsh difference between the parties, it is just is about the money. और civil cases में we just only have the damages and claims, we cannot we make a punishment provisions, but what we do, we are give the criminal coating to these act, these negotiable instrument, we give the criminal coating in a civil nature, civil nature होने के बावजूद भी हमने इसे criminal coating दी, and we give the provisions of punishment here, even the provisions of imprisonment here. Why we did that thing? Because when I make a fraud with the party regarding the money, when I make any type of that things, we just have a liability to pay the damages, but when I doing the fraud and I use the medium of bank, हमने बैंक को यूज करा फ्रॉड करने के लिए, we use the medium, the bank to make the fraud with another party. That is the big thing, big offense. Reason being the concept of the whole banking system are based on the trust. ट्रस्ट पे बेस्ड है, अगर हम उस बैंक के साथ ही बैंक का ही यूज करेंगे ट्रस्ट ब्रेक करने के लिए, दैट इज कंप्लीटली ऑफेंस. व्हाई इट्स अ कंप्लीटली ऑफेंस? बिकॉज बैंक आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन द ट्रस्ट एंड वी आर जस्ट ट्राई टू क्रैश द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा. इवन जो चेक का बेसिक पर्पस है, सिक्योर ट्रांजैक्शन, बेटर ट्रांजैक्शन या ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन, वो चेक का पर्पस ही खत्म हो जाएगा. To safeguard the purpose of a check and to maintain the trust of a bank, we make a negotiable instrument who is the Civil Liability Act in a Criminal Nature Act. Clear here? चलो, अब दूसरी एक बात और छोटी सी समझनी है कि जो चेक होता है, चेक के अंदर क्या होता है कि वी जस्ट मेक अ प्रॉमिस या फिर ऑर्डर करते हैं या फिर प्रॉमिस लगा लो, आई पे यू, फिर उसका नाम लिखा होता है. जैसे सपोज आई साइन अ चेक और टू ऑन यू दैट आई पे ए 10,000 रुपीज, और फिर मैं यहाँ पे साइन कर देता हूँ. इज इट और नॉट? अगर मैं बात करूँ करेंसी की, करेंसी भी समहाउ सिमिलर ही है. इज इट और नॉट? इफ यू हैव अ 100 रुपीज 500 रुपीज नोट्स, तो उस पर क्या लिखा रहता है? आई गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ आरबीआई प्रॉमिस टू पे यू 100 रुपीज. 100 रुपए के नोट पे यही तो लिखा रहता है कि मैं आपको 100 रुपए देने का वादा करता हूं. चेक पे भी यही है कि मैं आपको इतने रुपए देने का वादा करता हूं. चेक एंड करेंसी आर क्वाइट सिमिलर. जो करेंसी आपके पास है वो 100 रुपए नहीं है, वो बस ये चल रहा है हमारे साथ कि हमने मार्केट में दुकान वाले को दे दिया कि भाई मुझे तो नहीं लेने आरबीआई से पैसे, मेरे पास तो टाइम नहीं है, तू ले लीजिए, मुझे 100 रुपए का सामान दे दे. वो किसी और को दे रहा है कि तू ले लीजिए, मुझे 100 रुपए का सामान दे दे. सेम विद द चेक कि अगर मैं कोई चेक ड्रॉ कर दूं विदाउट एनी नेम, बिना किसी नेम के मैंने साइन कर दिया, अमाउंट लिख दिया 100 रुपए, और मैं आप किसी को दे देता हूं, ले 100 रुपए का चेक है, अपना नाम लिख के बैंक से पैसे ले लियो और मुझे 100 रुपए का सामान दे दे. सेम इफेक्ट है उनका. तो there is a nothing type of currency, just a illusion between all of us. And same with the check कि भाई ले लेना जब मन हो. Clear? But only difference between the check and currency is that check is valid only for 6 months and currency is valid till the order of a government. जब तक कि गवर्नमेंट उसे डिमोनेटाइज नहीं कर देती तब तक वो वैलिड रहेगी. Clear? That is the check and that is the currency. Now we have to be very clear with the how that offense has been made. Offense बड़े ध्यान से डेट वाइज समझते चलना है आपको by virtue of section 138. सबसे पहले section 138 simply says that whenever you draw a check and bank are not able to pay the honor the check, बैंक उस चेक को ऑनर्ड नहीं कर सकता, उसको मान नहीं सकता. किस वजह से? either be insufficiency of the account balance, या तो आपके अकाउंट में उतना बैलेंस ही नहीं जितने का आपने चेक ड्रॉ कर दिया, या फिर द लिमिट डिसाइडेड बाय यू, या फिर आपने ना बैंक को लिमिट डिसाइड कर रखी है कि भाई मेरे अकाउंट में चाहे कितने ही पैसे हो, 50,000 से ज़्यादा एक बार का विड्रॉल नहीं होगा, एक बार
का ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अब मैंने चेक साइन कर दिया 60,000 का, तो बैंक नहीं करेगा उसे अमाउंट, बिकॉज इट यू लिमिटाइज द बैंक विद देमसेल्फ। इन दो कारणों की वजह से अगर कभी भी कोई चेक ऑन डिसऑनर्ड होता है, डिसओन होता है, देन इट बिकम द केस ऑफ चेक बाउंस या फिर डिसऑनरमेंट ऑफ द चेक। अब ये कैसे बनेगा? सपोज 1 जनवरी को आपने को चेक मिला, यू गेट द चेक। चेक को इनकैश कराने का जो टाइम है वो 6 मंथ है। 6 महीने के अंदर अंदर आपको चेक इनकैश कराना है, तो आपके पास टाइम हो गया 30 जून, है ना। 30 जून के अंदर अंदर आपको वो बैंक में सबमिट कर देना। अगर 30 जून तक आप उसे सबमिट नहीं करते और 1 जुलाई को जाते हो, चेक हैज द नो वैलिडिटी विद लेफ्ट। ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको, सॉरी, कि क्या चीज है कि व्हेन समवन ड्रॉ चेक टू यू, इफ आई ड्रॉ अ चेक टू यू, मैंने आपको 5,000 का चेक दिया और आप उसे टाइमली बैंक में सबमिट नहीं करा पाए या फिर किसी कारण वो छोटा बहुत खराब भी हो गया, तो आप मुझसे दोबारा चेक नहीं मांग सकते। आई पेड माई लाइबिलिटी टू यू, बिल्कुल एज ए डील होगा जैसे मैंने आपको करेंसी इन कैश पे कर दी। नो मैटर कि भाई आपने तो अकाउंट से पैसे नहीं निकाले थे, चेक खो गया था, आई एम नॉट बी लाइबल फॉर इट। अगर कल को मैं आपको हार्ड कैश देता, वो आप खोदे, तो यू विल बी लाइबल। ठीक है, एक चीज। और दूसरी बात ये है कि व्हेन आई ड्रॉ चेक टू यू, मैंने एक चेक आपको दिया 5,000 रुपए का, मतलब सपोज मेरा एक कर्जा था आपके, मुझे आपको 5,000 रुपये पे करने थे एज अ डेप्थ, और मैंने उसके लिए आपको चेक दे दिया, और फिर बाद में मैं आपको कॉल करता हूँ कि ना मैं आपको 5,000 रुपये कैश दे देता हूँ, आप वो चेक को इन कैश मत कराना, और 5,000 रुपये मैंने आपको कैश दे दिया। अब आप क्या कर रहे हैं कि फिर भी चेक को बैंक में ले गए 5,000 के बाद भी, मैं आपसे चेक उल्टा लेना वापस भूल गया। अब चेक वो हो गया बाउंस कि मेरे अकाउंट में तो पैसे नहीं, क्योंकि मैंने तो निकाल के अब आपको दे दिए थे। तब भी मैं कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि मेरी लायबिलिटी नहीं थी। ये बड़े क्लियरली समझ लेना कि कोर्ट नेवर बी डिस्कस अबाउट दैट यू हैव एनी लायबिलिटी टू पे और नॉट। कोर्ट इस मैटर पे डिस्कस ही नहीं करेगा। कोर्ट आस्क जस्ट सिंपल थिंग, इज इट अ चेक बुक, इट इज अ चेक ऑफ योर चेक बुक, हाँ जी ये मेरी चेक बुक का चेक है, इट्स साइंड बाय यू, हाँ जी इट्स साइंड बाय मी है, डन, नथिंग मोर देन दैट। आपको ये पूछा ही नहीं जाएगा कि आपकी लायबिलिटी थी नहीं थी, फ्रॉडली साइन हुए नहीं हुए, आपके साइन हुए, डन। हाँ, अगर फ्रॉड हुआ है 420 का कोई मैटर, देन यू हैव टू बी गो इन सम अनदर कंप्लेंट, पर यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में आपका चाहेगा यू हैव टू पे द लायबिलिटी, सिंपली विद दैट यू हैव टू पे द अमाउंट वट एवर राइट ऑन द चेक। क्लियर? चलो, हाँ यदि चेक खराब हो जाता है या कोई, हाँ, तो भी वो पार्टी आपको दोबारा पे नहीं करेगी, उसकी लायबिलिटी वहां पे रिलीज हो गई। आप अगर अच्छे मन से दोबारा पे कर दें वो डिफरेंट बात है, लेकिन उसकी लायबिलिटी नहीं बनती। जैसे ही मैंने चेक दिया मेरी लायबिलिटी खत्म। ठीक है, विदिन 6 मंथ उसने विथड्रॉ नहीं किया फिर सर, तो भी मेरी लायबिलिटी खत्म। मैंने तो चेक दे दिया ना, अब आपने वो विथड्रॉ नहीं करा, इन कैश नहीं कराया, आपकी गलती। कोर्ट का बड़ा सिंपल क्राइटेरिया, द पर्सन हु स्लीप ऑन इज राइट, इट मींस द राइट हैज बीन स्लीप। जो अपने अधिकारों पे सो गया उसके अधिकार भी सो गए। ठीक है, मतलब मैं यहां पे चेक को करेंसी डील कर रहा हूं कि मैंने आपको पैसे दे दिए हैं, ठीक है, एज अ करेंसी। अब वो खो जाता है, आप इन कैश नहीं कराते, ये आपकी गलती है। सपोज मैं आपको पैसे दे दूं, अगले दिन सरकार उन नोट को बंद कर दे, तो आप मुझे वो पैसे उल्टे थोड़ी ना करने आएंगे। सर इसमें भी तो कुछ रिकॉर्ड तो होता होगा कि चेक बाउंस हो गया या लिया नहीं है अभी तक। हाँ हाँ भाई, मेरा जो अकाउंट है मुझे तो पता पड़ ही जाएगी ना कि अब तक उसने पैसे लिए ही नहीं है, क्योंकि जब मेरे अकाउंट से डेबिट होंगे तो मुझ पर मैसेज भी आ जाएगा। लेकिन पर इट्स नॉट माई वर्क, आई जस्ट साइन द चेक, आई गिव टू यू, यू विल बी लाइबल। ठीक है,
चलो दोबारा से अब आते हैं अपने टाइम वाले पे। यहाँ तक हमने चेक की थ्योरी समझी, अब थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट देखेंगे कि 1 जनवरी को चेक आपने दी का ड्रॉन करा, 1 जनवरी की डेट लिखी हुई है चेक के ऊपर, अब वो 30 जून तक की वैलिडिटी है उसकी भैया। ठीक है, अब सपोज आपने 1 फरवरी को, नहीं फरवरी का मंथ नहीं लेते, 1 मार्च का लेते, 1 मार्च को यू सबमिट टू द बैंक, बैंक में आपने दे दिया और इनकैश कराने के लिए। बैंक ने बताया 15 मार्च को, 15 मार्च को बैंक सेड दैट द चेक हैज़ बीन बाउंस, जो चेक है वो बाउंस हो गया है, मतलब चेक हैज़ बीन नॉट बीन ऑनर्ड बाय द बैंक बिकॉज ऑफ सम एनी अदर रीजन, या तो इनसफिशिएंट बैलेंस है या लिमिट बना रखी है। जिस दिन से ये हुआ 15 मार्च से, 16 मार्च से आप, या फिर 15 से लगाए, 15 मार्च से आपके पास पावर आ गई, देन यू कैन फाइल अ नोटिस टू पार्टी विद इन द 30 डेज। तो 15 से 30 डेज हुए हमारे 14 मार्च होता है 31 का, 31 का मंथ, तो 13 ले लीजिए, 30 अप्रैल तक आपके पास टाइम है नोटिस भेजने का, 30 डेज के अंदर। गेट दैट थिंग? मैं अभी बता, आप बस ध्यान सुनिए, मैं अभी बताता हूँ भाई। 1 जनवरी को हमने चेक काटा, चेक ड्रॉ करा, 1 जनवरी के बाद हमने 1 मार्च को वो चेक बैंक में दे दिया। बैंक ने 15 मार्च को मुझे बताया कि जी चेक जो है डिसऑन हो गया है, एक दो इतना टाइम कई बार बैंक ले जाती है, ठीक है, 1-2 हफ्ते में पता चलता है। बैंक कहती है कि भाई चेक जो ना डिसऑनर्ड हो गया है, चेक हैज़ बीन बाउंस्ड, और फिर वो सर्टिफिकेट देती है, जैसे बैंक ये देती है कि रीज़न के साथ ही इस वजह से ये बाउंस हो गया, और उस पर अपनी स्टैंप लगा के देगी। ठीक है, तो अब 15 मार्च को मुझे मिला चेक बाउंस होके, मेरे पास अब सर्टिफिकेट आ गया। जिस दिन मुझे ये बात पता चली कि मेरा चेक बाउंस हो गया, उस दिन से लेके 30 दिन होते हैं मेरे पास नोटिस भेजने के पार्टी को जिसका वो चेक था। तो 15 मार्च से लेके मेरे पास 30 अप्रैल तक का समय, 13 अप्रैल तक का, सॉरी 30 डेज, 13 अप्रैल तक का समय है। 13 इसलिए, वैसे तो ये 14 होता, लेकिन जो मार्च का महीना है वो 31 का महीना होता है। ठीक है, ये डेट्स में कंफ्यूजन ना हो जाए, वैसे ये ध्यान से समझते चलना कि मार्च का महीना होता है 31 का, तो 13 अप्रैल तक का मेरे पास टाइम है। ठीक है, चलो इस बीच में मैं नोटिस भेज देता हूं, अगर 13 अप्रैल से 14 अप्रैल होगी तब वो चेक फिर बेकार हो गया, अब उसका कोई वैलिडिटी नहीं रही। ठीक, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट विद द डेट्स। तो अब मैं यहां पे क्या करता हूं, मैंने उसको 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल आई सेंड अ नोटिस, 1 अप्रैल को मैंने नोटिस ड्राफ्ट करके पोस्ट ऑफिस में दे दिया, नोटिस मैंने सेंड कर दिया, और नोटिस उसे मिला 10 अप्रैल को। ठीक है, डिलीवर्ड हो गया, डिलीवर्ड, और यहां पे सेंड, यहां से सेंड हुआ था 1 को, और 10 अप्रैल को डिलीवर्ड हो गया। क्लियर यहां तक? अब जैसे ही 10 अप्रैल को डिलीवर्ड हुआ, उसके बाद मेरे पास टाइम है 15 डेज का। आई विल वेट फॉर 15 डे, 15 दिन तक मैं वेट करूंगा। 10 से मैं 15 दिन कौन कितने हुए हमारे पास, 24 अप्रैल। ठीक है, 10 से मैं 24 अप्रैल तक वेट करूंगा कि नोटिस मेरा डिलीवर हो चुका है, डिलीवरी डेट से, सेंडिंग डेट से नहीं, जिस दिन डिलीवर हो चुका है, मुझे पता चल गई डिलीवर हो गया है। पोस्ट ऑफिस से जब आप डिलीवर करते हो, आजकल तो खैर ट्रैक भी कर सकते हैं, तो वो उसमें डिलीवरी का स्टेटस आ जाता है, या फिर एक ईडी कार्ड स्लिप होती है, जब आप लेटर भेजते हैं ना, उसमें एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है, वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप उल्टी आती है जब अगर डिलीवर होता है तो। ठीक है, तो 10 तारीख को डिलीवर हो गया। आई विल वेट फॉर द 15 डेज कि भाई पार्टी को भी नोटिस मिला है, सोच रही होगी उल्टा भी कर दे पैसे, जो भी है उसे करना होगा। 15 दिन तक का वेट हुआ, 24 अप्रैल तक का। 15 दिन के बाद अगर 15 दिन तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिलता, ऑन द 16th डे कॉज ऑफ एक्शन हैज बीन अराइज, अब ऑफेंस बना है। अब तक कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं था, यहां पे 16th डे 25 अप्रैल को आपका offense has been created, now you can go in a court and file the case। एक बार फिर से थोड़ा सा समझेंगे। चेक 1 जनवरी को हमने चेक ड्रॉ करा, 30 जून तक का हमारे पास टाइम है, 6 महीने का टाइम है, कभी भी बैंक जाके इनकेस करा सकते हैं। मैं 1 मार्च को बैंक गया, मैंने बैंक में चेक सबमिट करा, 15 मार्च को बैंक ने मुझे बताया कि भाई साहब आपका चेक तो बाउंस हो गया। मैंने कहा ठीक है यार,
बाउंस हो गया तो 15 मार्च से लेके मेरे पास 13 अप्रैल तक का 30 दिन का टाइम है कि 30 दिन के अंदर अंदर मैं उसे नोटिस भेज दूं। 1 अप्रैल को मैंने नोटिस भेजा और 10 अप्रैल को नोटिस सर्व हो गया, डिलीवर्ड हो गया। आफ्टर गेटिंग द डिलीवरी ऑफ नोटिस आई विल वेट फॉर द 15 डेज। मैंने 15 दिन तक वेट करा कि लेट सी कि पार्टी कुछ रिप्लाई कर दे। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। ऑन द 16th अप्रैल कॉज ऑफ एक्शन हैज बीन अराइज, ऑफेंस हैज बीन रेज्ड, नाउ यू कैन फाइल अ केस। क्योंकि हमने उसे सारे मौके दिए, नोटिस भेजा, उसका वेट भी करा नोटिस का, अब भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो हम 16वें दिन उस पर केस कर देंगे। हमने सारे प्रोसेस इसलिए रखे, नोटिस की एक प्री कंडीशन कोर्ट ने पहले ही लगा रखे कि भाई अगर कोई चेक बाउंस होता है तो एक बार उस पार्टी को बता दें, क्या पता वो उसने गलती से पैसे निकाल लिए हो। जैसे मैंने आपके लिए 5,000 का चेक काटा, मेरे अकाउंट में 6,000 रुपए थे, गलती से मैंने 2-3 हज़ार रुपए निकाल लिए, मैं गिरना भूल गया, तो नोटिस से मैं उस चीज़ों को रेक्टिफाई तो कर सकता हूँ, फिक्स तो कर दूँ। क्यों अननेसेसरी कोर्ट का टाइम वेस्ट करना और दूसरी पार्टी को भी हैरेस करना। या फिर हो क्या पता कि आप कोर्ट में जाएं, केस फाइल करें, दूसरी पार्टी कहते यार मुझसे कह देता, वो गलती हो गई थी, मैं भी दे देता हूँ पैसे। तो एक मौका पहले दे दिया है हमने पार्टी को, फिर भी वो नहीं करता तो हम सीधे कोर्ट जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? अब वैसे छोटी सी बात और समझना, बहुत माइन्यूट सी है, सारे हमारे पास टाइम है। सबसे पहले 6 महीने की विंडो थी चेक को बैंक में गिरने की, बैंक से क्या कहते हैं वो ऑर्डर मिलने के बाद कि भाई बाउंस हो गया, उसके बाद 30 दिन की हम पे विंडो थी कि 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस भेजने, उसके बाद 15 दिन की विंडो थी नोटिस डिलीवरी होने के बाद। सपोज यहाँ पे आता हूँ मैं फिर से इस वाली स्टेज पे, देखना 1 जनवरी को चेक कटा, 30 जून तक का टाइम है, ठीक है। 1 मार्च को मैंने चेक गिरा और 15 मार्च को मुझे पता चल कि बाउंस हो गया। 13 अप्रैल को जैसे ही वो बाउंस हो गया, नाउ द 13th अप्रैल वी हैव द लास्ट डेट टू फाइल अ नोटिस। सपोज यहाँ पे 14 अप्रैल आ गई, 14th अप्रैल हैज बीन कम, मैंने नोटिस नहीं भेजा, आई डिडंट सेंड द नोटिस, अब मेरा तो सब कुछ बेकार हो गया। यहाँ पे एक ऑप्शन और है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, मैं दोबारा से उसी चेक को फिर से बैंक में गिर दूंगा, क्योंकि देखो विंडो कब तक है, 30 जून तक है ना चेक को बैंक में गिरने की। मैं फिर से उसे गिर दूंगा बैंक में। सपोज अब यहाँ पे देखेंगे 14 अप्रैल को मैंने दोबारा से बैंक में गिरा और बैंक ने फिर 10 दिन लिए और 24 अप्रैल को मुझे दोबारा से एक सर्टिफिकेट और दे दिया। भाई बैंक से तो कितनी बार मैं दोबारा कह दूंगा भैया दोबारा ट्राई कर। अच्छा, बैंक का क्या सीन है कि जब चेक बाउंस होता है ना तो कुछ रुपए आपके अकाउंट से और कुछ रुपए दूसरी पार्टी के अकाउंट से, दोनों के में से कट जाते हैं, क्योंकि बैंक का भी तो टाइम वेस्ट हुआ है इसमें, ठीक है। तो हम दोबारा कह देंगे भाई कोई बात ना, मेरे अकाउंट से फिर से काट लियो पैसे, दोबारा चेक कर, शायद क्या पता अब की ऑन हो जाए। तो फिर यहाँ से जैसे ही मैंने 14 अप्रैल को दोबारा चेक गिरा, 24 अप्रैल को मेरे पास बैंक का रिप्लाई आएगा जी फिर से चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑन हो गया। यहाँ से फिर मेरे पास 30 दिन की विंडो फिर से ओपन हो जाएगी। बैंक में चेक जब तक मैं बार बार गेड़ता रह सकता हूं जब तक 30 जून ना आ जाए। हाँ, विद इन 6 मंथ। इवन अगर जैसे यहाँ पे मैंने नोटिस नहीं भेजा उसको टाइमली, तो मैं दोबारा ऊपर जाऊंगा यहाँ पे, फिर अगर टाइम बचा है, जैसे कि यहाँ पे हम देखें टाइम कितना था, 15 दिन की विंडो थी, यहाँ पे 10, हाँ तो 30 डेज की 13 अप्रैल तक की विंडो थी, तो 13 अप्रैल से के बाद भी मैं भेज सकता हूँ, यहाँ पे 16-17 अप्रैल के बाद भी भेज सकता हूँ, कभी भी भेज सकता हूँ, लेकिन 30 जून से पहले पहले भेजूंगा। ठीक है, क्लियर? अब चेक बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें? चलो ग्रेट, दैट इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द ऑफेंस। अब हम आगे चलेंगे, एक छोटी सी चीज और है इसमें कि जो चेक होते हैं ना वो 2 तरीके के हैं। मैं आपको बताऊं कि एक होता है अकाउंट पेड, अकाउंट पे चेक, और एक होता है पेमेंट, कैश पेमेंट चेक। हाँ, 1 मिनट रुक, आज थोड़ा सा ना थोड़ी सी डिस्टर्ब।
सॉरी, दो तरीके के चेक होते हैं। देखो, एक तो होता है कि मैंने आपको चेक दिया, अब वो चेक का जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, आपके अकाउंट में। और एक होता है कि मैंने आपको चेक दिया, आप बैंक गए और डायरेक्टली बैंक से कैश ले लिया आपने, कैश इन हैंड। पता है आपको, ऐसा भी चेक होता है। तो दोबारा बताओ सर, अकाउंट पे वाला कैसे सर? अकाउंट पे वाला तो देखो, ए ने बी को चेक दिया, हाँ जी तो सर। ए के अकाउंट से पैसा निकल के बी के अकाउंट में जाएगा, हाथ में नहीं मिलेगा। हाँ जी सर, ठीक है, ज्यादातर नॉर्मली चेक ऐसे होते हैं, सबके अकाउंट में पैसे आते हैं। एक होता है ए ने बी को चेक दिया और अब ए के अकाउंट से पैसे निकल के बी को सीधे कैश मिल जाएंगे हाथ में, बी को अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। ओके सर। ठीक है, ऐसे भी होते हैं। सिंपल सा क्राइटेरिया है, अगर चेक पे क्रॉस बन रहा है तो इसका मतलब वो बैंक के अकाउंट में पे होगा, बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर होगा। और अगर आपने चेक दिया है और उस पर क्रॉस नहीं बनाया, सिंपल प्लेन चेक है, हाँ जी सर। तो इसमें पार्टी डायरेक्ट हाथ में भी पैसा ले सकती है कि भाई अकाउंट में नहीं, मेरे यहीं पे दे दे मुझे। क्लियर? तो दैट इज कई बार आपने सेल्फ चेक सुना है कभी? सेल्फ चेक, कि हम बैंक जाते हैं और अपने नाम का एक चेक काटते हैं कि मुझे 2 लाख रुपए दे दिए जाएं, और बैंक हमें दे देता है और बैंक को चेक दे देते हैं कि भाई मेरे अकाउंट से मुझे ही दे दी जाएं। हाँ जी सर। ठीक है, और काफ़ी सारे बैंकों में आजकल ये हो भी गया कि 50,000 से अगर अबव का अमाउंट आपको विड्रॉ करवाना है तो विड्रॉ स्लिप नहीं भरवाते, वो चेक स्लिप, चेक ही भरवाते हैं, अपने नाम का सेल्फ चेक दे दीजिए जी। हाँ जी सर। ठीक है, तो दो तरीके के चेक होते हैं। अब जो अकाउंट पे चेक होता है जिसमें अकाउंट टू अकाउंट पैसा जाएगा, अगर उसका कोई केस है, अगर उसका कोई केस है, तो जो पेई जिसको पैसे देने हैं हाँ जी सर। उसका जिस बैंक में अकाउंट है, पेई का जहां अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, जी सर। उस बैंक अकाउंट की एरिया जुरिडिक्शन की कोर्ट में केस घेरा जाएगा। ओके सर। ठीक है, जहां पे जिसको पैसे लेने हैं उसके अकाउंट की, उसके बैंक अकाउंट की कोर्ट में। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ऐसा कोई, हाँ बताइए। पैसे लेने वाले की जुरिडिक्शन में या जो देने वाला है उसकी? लेने वाले के में, यहाँ पे लेने वाले की में होगा, देने वाले की में। है ना, अकाउंट पे में। हाँ जी सर। अकाउंट पे में। और अगर कैश पे है तो जो पैसे दे रहा है, ड्रॉर, ड्रॉर जिसने पैसे चेक बनाया है, अगर कैश पे है तो ड्रॉर का जहां पे अकाउंट है, ड्रॉर का जहां पे बैंक अकाउंट है, उस एरिया जुरिडिक्शन की कोर्ट में मैटर जाएगा। पहले ये बात आप एक बार देख लें सिंपली, अकाउंट पे के केस में जिसको पैसे मिलेंगे उसके बैंक अकाउंट वाले कोर्ट में जाएगा, और कैश पेमेंट के केस में जिसने पैसे देने हैं उसके अकाउंट को के बैंक अकाउंट वाले केस कोर्ट में जाएगा। हाँ जी सर। लॉजिक क्या है इसके पीछे? इसके पीछे लॉजिक इतना सा है कि जब मैं ऐसा वाला चेक फाइल करता हूँ ना, ये वाला चेक जहाँ पे कैश पेमेंट हो जाती है, सपोज मैंने, मेरी एसबीआई में मेरा अकाउंट है, मैंने आपको चेक दिया कि पैसे ले लेना बैंक से, और आपको चाहिए कैश पेमेंट, तो आप कौन से बैंक में जाएंगे? ऐसा नहीं कि किसी भी बैंक में चलेगी वही आपको दे देगा, आप एसबीआई के ही किसी बैंक में जाएंगे और वहां से पे लेंगे कि देखो आपका, आपकी ब्रांच का कोई किसी बंदे का अकाउंट है, उसने लिख के दिया है, मुझे पैसे दे दीजिए। जो कैश पेमेंट वाला जो चेक है वो इन कैश ही सेम ब्रांच में होता है जिस ब्रांच का वो चेक है। ओके सर। ठीक है, तो जहां पैसे लेने गए हो ना, मोटा मोटा ये समझ लीजिए, जहां पैसे लेने गए हो उसी बैंक के जुरिडिक्शन में पे आपका केस गिरेगा। हाँ जी सर। ठीक है, और अकाउंट टू अकाउंट आएगा तो मैं अपने बैंक के में दे के आऊंगा अपना चेक। यस सर। ठीक है, दैट इज द जुरिडिक्शन। ये क्लियर? यस सर। चलो अगली चीज चलते हैं अब हम। वो मैंने आपको बता दिया कि लाइबिलिटी तो हमेशा रहेगी, डिस्कस भी नहीं होगी, वी जस्ट डिस्कस अबाउट द चेक। हाँ जी सर। एक चीज समझना, कंपाउंडेबिलिटी, ये जो ऑफेंस है ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इट कैन बी कंपाउंड एट एनी स्टेज ऑफ कोर्ट, चाहे ये सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, या हाई कोर्ट में केस चल रहा है, या सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया सपोज अपील होते होते, और सुप्रीम कोर्ट की लास्ट स्टेज पे चल रहा है, 1-2 दिन में जजमेंट आ जानी है,
2 दिन पहले भी आप इसको कंपाउंड कर सकते हो, समझौता कर सकती है पार्टी। ओके सर। कोर्ट विल नेवर बी रेस्ट्रिक्टेड। लेकिन कोर्ट ने एक इसमें पेनल्टी, इंटरिम कंपनसेशन का एक प्रोविजन बना रखा है। इंटरिम कंपनसेशन क्या है कि सपोज लोअर कोर्ट में आपका फैसला चल रहा है, केस चल रहा है, लोअर कोर्ट में यू आर कन्विक्टेड, आपको कन्विक्ट कर दिया गया कि भाई आपने फ्रॉड करा है और इसको पैसे पेमेंट करो चेक के, ठीक है। अगर एक आप कन्विक्टेड हो जाते हो और अब आप गए अपील में, यस सर। अपील में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, आपने अपील फाइल करी कि जी नीचे वाली कोर्ट ने गलत फैसला सुनाया है, सम ऑफ द फैक्ट हैज बीन नॉट बीन हेयर प्रॉपर्ली, दैट्स व्हाई आई फाइल्ड अ अपील। तो जो अपोजिट पार्टी होगी, अपोजिट पार्टी कौन होगा? पेई, जिसको पैसे लेने हैं, वो कोर्ट में ये कह सकती है कि जी जनाब देखो, एक तो नीचे वाली कोर्ट से ये हार के आया है, पैसे इसने अब तक दिए नहीं है, और मैं जब से लेके अब तक यूं ही धक्के खा रहा हूं, मुझे कुछ तो पैसे दिलवा दीजिए। तो उसे बोलते हैं इंटरिम कंपनसेशन। तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, अपीलेट कोर्ट, जो भी अपीलेट कोर्ट होगी, उसके पास पावर है कि वो ऑर्डर कर दे कि भाई जो चेक अमाउंट का 20% अभी पे कर दिया जाए इसे, ठीक, चेक का 20%, ओके सर। ठीक है। अब ये बंदा फिर दोबारा हार गया, फिर हाई कोर्ट गए, हाँ जी सर। हाई कोर्ट फिर से इसे फिर से आप हाई कोर्ट में जाके कह सकते हो जी एक तो 20% मिला है अभी तक, फिर से इसने अपील कर दिया, मेरे तो पूरे पैसे मिलने में ही नहीं आ रहे जी। तब हाई कोर्ट ये कह देगा कि चलो कोई बात नहीं, 20% और इंटरिम कंपनसेशन अभी दी जाए, हार जीत बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन ये कंपनसेशन उसी पार्टी को मिलेगा जो नीचे वाली कोर्ट से जीत के आई है, ठीक है। हाँ जी सर। दैट इज द इंटरिम कंपनसेशन। इसके अलावा जो, हाँ बताइए। नीचे वाली कोर्ट से जीत के कैसे आएगी सर? नीचे वाली, तो मिल ही जाता है, कंपनसेशन कंप्लीट दे ही देती है कोर्ट पहले। नहीं, क्या सिनेरियो होता है कि लोअर कोर्ट से आपने केस जीता, दूसरी पार्टी कन्विक्ट होगी, दूसरी पार्टी को पे करने, लेकिन वो पे नहीं करती, वो डायरेक्ट अपील कर देती है, और जब तक अपील हो रही है तब तक पैसे देंगे नहीं। तभी तो वो बंदा कह रहा है जी एक तो नीचे वाली कोर्ट से मैं जीत गया, फिर भी मुझे पैसे नहीं मिले, इसने फिर अपील कर दी, कितने टाइम से इसने पैसे नहीं दिए। तब ऊपर वाली कोर्ट कह रही कि चल तू 20% फिलहाल अभी दिलवाते थे, फिर अपील सुनते हैं। अपील से में फिर वो बंदा जीत गया, दूसरा बंदा हार गया, वो फिर अपील कर रहा है, फिर वो दोबारा ऊपर वाली कोर्ट से कह रहा है जी एक अभी तो मुझे बस 20% ही मिले और दिलवा दो, ये तो अपील पे अपील करे जा रहा है, फिर हाई कोर्ट 20% और दिलवा देती है, ठीक है। चलो, ये हुई इंटर। इसके अलावा 2-3 बातें और हैं कि जो इसका जो ट्रायल होता है वो समरी ट्रायल होता है, और इसमें जो पनिशमेंट है ट्वाइस ऑफ अमाउंट, जो अमाउंट आपने बता रखा है, मतलब जो चेक का अमाउंट है उसका दुगना पे करना पड़ेगा, और 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। एक इसमें एक प्रोविजन ये भी है कि कोर्ट ट्राई करेगी कि विद इन 6 मंथ केस का फैसला हो जाए, ट्राई करेगी कोर्ट, इट्स नॉट अ मैंडेटरी, बट कोर्ट विल एंडेवर टू बी कंप्लीट द केस विद इन 6 मंथ। क्लियर? यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हुई with the regarding the negotiable instrument act. Apart from that, there is some of the definition part is also there. For that I will provide the one liner. ज़्यादा बेरेक नहीं देखना, हमें बस 138 onwards इसके कुछ sections हैं, उन्हें थोड़ा सा देख लेना, और some of the theory which I send to you. Definitions वाला जो portion है उसके लिए PDF की एक छोटी सी रीडिंग कर लेना, बहुत माइन्यूट सी, और अदरवाइज आई विल गिव टू द लाइनर टू द एवरीवन फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। एक दो चीज़ और है, जैसे कि देखो होल्डर होता है एक, भाई ए ने चेक दिया और उस पर नाम नहीं लिखा, चेक मैंने बिना नेम के अगर कर दिया, तो अब वो फिलहाल चेक बी पे, जिस पे है वो अपना नाम लिख के उसको इनकेस करा सकता है। बी ने सी को दे दिया, सी ने डी को दे दिया, लास्ट में ई को मिला और ई ने उस पर अपना नाम लिख के बैंक से पैसे इनकेस्ट करा लिए। तो यहाँ पे बी सी डी ये होल्डर थे, इन्होंने कुछ टाइम के लिए बस उसे होल्ड करा, होल्डर कह दूं या मैं बियरर कह दूं, ठीक है। पे यहां पे ई था और ए तो ड्रॉर है ही, इनमें से कोई भी बंदा उस पर अगर नाम लिख के अपना वो इनकेस कराता तो वो पे ही हो जाता, अदरवाइज ये सब होल्डर एंड ड्यू कोर्स थे, ठीक है। और एक दो चीज ये कि टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक हमारे पास प्रोमिसरी नोट है, 3 टाइप होते हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और एक है चेक।
प्रॉमिसरी नोट क्या है कि आई प्रॉमिस टू यू पे यू सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, सिंपली दैट, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, दैट इज प्रॉमिसरी नोट। तो मेरे ऊपर 5,000 की लाइबिलिटी बन गई। इसेंशियल क्राइटेरिया इसका ये है कि पार्टी सर्टेन हो, टाइम सर्टेन हो और सर्टेन अमाउंट हो, अनकंडीशनल हो, इसमें कंडीशन नहीं हो सकती कि भाई आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, वो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ कंडीशन से भाई चेक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, किसी में भी कंडीशन नहीं है। चेक में देता हूँ कंडीशन थोड़ी ना लिखी रहती है उसमें बस ये है कि पे करूंगा, लाइबिलिटी कंडीशन पीछे कहीं और है और कोर्ट उस पर डिस्कस भी नहीं करेगी। बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल चेक की तरह ही है, बस इतना फर्क है कि चेक में जो पे ड्रॉई है, जिसको आदेश दिया जाता है पैसा पे करने के लिए, वो तो बैंक होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में वो एक पर्सन होता है। जैसे कि ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दिया सी को, ठीक है, तो ए हो गया ड्रॉर और सी को दिया, सी का नाम लिखा है तो सी हो गया पेई, कि तू जा बी से पैसे ले लियो, बी को मैंने पहले से पैसे दे रखे उससे पैसे ले लियो, तो यहां पे बी हो गया ड्रॉई, ठीक है। तो ड्रॉर ने पेई को लिख के दे दिया कि बी से पैसे ले ले, ड्रॉई से पैसे ले ले। यहीं पे अगर वो बी जो है पर्सन है तो बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, या कोई इंस्टीट्यूट है नॉर्मल सा तो बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, लेकिन बैंक है तो चेक हो गया। इतना फर्क है इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में है। क्लियर? चलो अब आप एक बार अपनी सारी पीडीएफ रीड करेंगे, देन वी विल बी गेट द डाउट। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? स्पेशली ये टाइमलाइन जरूर समझ लेना, और ये जो टाइमलाइन है सारी 138 में भी लिखी हुई है, उसे एक बार आप पढ़ेंगे सेक्शन 138 को तो उसमें सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक विद द टाइमलाइन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस ही टाइमलाइन पे बेस्ड है, कई बार केस ही रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द लूप ऑफ द टाइमलाइंस, ठीक है। एंडोर्समेंट भी इसमें कुछ लिखा हुआ है? इंडोर्समेंट छोटा सा आप समझ लीजिए। इंडोर्समेंट क्या है? इंडोर्समेंट क्या है कि सपोज ए ने बी को चेक दिया, बी का नाम भी लिख दिया, अब बी का नाम लिखा, तो ये इंडिया में ऐसा सच अब ये वैलिड नहीं है। आरबीआई हैड नॉट बी रिकॉग्नाइज द इंडोर्समेंट नाउ। मैंने चेक दिया और यहाँ पे ए के साइन हो गए और बी का नाम लिखा हुआ है, 100 रुपये का चेक है। अब मैं क्या करूँ, अब मुझे ये सी, बी कह रहा है कि यार मुझे तो पैसे नहीं निकालने, सी को देना मुझे ये, तो बी क्या करेगा, सी को देना है तो एक स्लिप लेगा, यहाँ पे सी का नाम और अपनी सारी बात और लिख के साइन करके इसके साथ स्टेपल कर देगा, अफिक्स्ड कर देगा, इसे हम इंडोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। एडिंग द स्लिप टू मेक द नेगोशिएट दैट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। इंडोर्स करना अलग से एक स्लिप को, उस इंस्ट्रूमेंट का एक्ट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट का पार्ट नहीं है, अलग से आपने उसको इंडोर्स कर दिया, दैट इज इंडोर्समेंट। इंडिया में एज सच अब इतना वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो स्लिप खो जाएगी और उसकी वैलिडिटी कौन चेक करेगा, कौन वो सही है गलत है, किसने लिखी किसने ना लिखी, तो वो हमेशा कंफ्यूजिंग रहती है, ठीक है। चलो और कोई डाउट? ओके देन बाय। ओके, थैंक यू सर।